Okay, good afternoon, friends. Today we are going to start with the next topic in the matrices, that is the algebra of the matrices. In the previous session, we have seen what is matrices, what are different types of the matrices. Now we are going to start with the algebra of the matrices. The very first thing, what do you mean by algebra? Algebra का basic मतलब होता है operations. Operations means addition, subtraction, multiplication, division. These are the operations which we are going to see in this. Before that, you should be knowing some basic operations which can be done on the matrices. The very first operation, as you can see, that is the transpose of the matrix. Transpose के लिए मैंने हिंट यहाँ पे लिख के रखे. What do you mean by transpose? Transpose simply means interchanging. Interchanging means interchanging rows and the columns. That means we are going to write rows as a column and columns as a row. You just have to keep in mind, either you write rows as a column or rows or columns as a row. मतलब क्या होता है, एक तो आपको सारे रोज को कॉलम्स के टर्म्स में लिखना है या फिर सारे कॉलम्स को रोज के टर्म्स में लिखना है. I'll explain you how. Here as you can see, A matrix A is given as, now I am reading it column wise पढ़ रहा हूँ उसको. A is 2 minus 9 7 1 7 minus 8. ठीक है, दिस इज द मैट्रिक्स विच इज गिवन टू यू. यहाँ पे मैंने उसके ऑर्डर भी लिख दिया. व्हाट इज द ऑर्डर? एज वी नो, first number indicates number of rows, second number indicates number of columns, so it is 3 by 2. That means 3 rows are there and 2 columns are there. 3 rows, first row contains 2 1, second row contains minus 9 7, third row contains 7 and minus 8, and 2 columns कौन से जो मैंने अभी पढ़े थे, 2 minus 9 7 1 7 minus 8. 3 rows and 2 columns. Now what I'm going to do, I'm going to find the transpose. Transpose मतलब क्या करने वाले हम, interchanging rows and the columns. rows को column की जगह, columns को rows की जगह. Now as I have read it according to the columns, I'll change it column wise. ठीक है, पहला कॉलम क्या था, 2 minus 9 7. अब ये पहला कॉलम जो होगा वो ट्रांसपोज में, AT मतलब क्या होता है, A ट्रांसपोज. अब वो ट्रांसपोज में क्या बन जाएगा, पहला कॉलम पहला रो बन जाएगा. What I'm going to do, कॉलम को रो बना रहा हूं. पहले मैं कॉलम वाइज बता देता हूँ, कॉलम को रोज चेंज करना, रोज का भी बता देता हूँ. वन एंड द सेम ही है, नॉट एन वेरी बिग चेंज ओवर देयर. हियर 2 minus 9 7 is nothing but the column. In the transpose we are going to write it as row, मतलब हॉरिजॉन्टल लिखना है. देखो ये 2 minus 9 7 था, यहाँ पे मैंने 2 minus 9 7 लिख लिया, हॉरिजॉन्टल लिख लिया. नेक्स्ट अभी इसका कॉलम, नेक्स्ट कॉलम कौन है, सेकंड, 1 7 minus 8. दिस कॉलम वुड बी रिटन एज horizontal, that is row 1 7 minus 8. हो गया ट्रांसपोज. दैट इज द ओनली कंसेप्ट विच वी आर हैविंग. आइदर यू चेंज कॉलम इनटू द रोज और रोज इनटू कॉलम. अब मैं रो वाइज का भी आपको बता देता हूँ. अब यहाँ पे रोज कितने देखो, 1 2 3. इन रोज को कैसे लिखना है, हॉरिजॉन्टल को कैसे लिखना है, वर्टिकल. यहाँ पे क्या था, 2 1 रो था, यहाँ पे 2 1 देखो पहला कॉलम बन गया. फर्स्ट रो हैज बिकम फर्स्ट कॉलम. सेकंड रो, व्हाट इज सेकंड रो, minus 9 and 7, minus 9 7, second row has become second column. Similarly third row 7 minus 8, it has become the third column. That means you can either do it column wise or row wise, whichever is suitable for you. आपको जो कोई भी कन्वीनियंस लग रहा है उसके हिसाब से करेंगे. तो ऑब्वियसली दिस 3 and 2, यहाँ पे 3 था रो एंड 2 था कॉलम, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा. मतलब अभी कॉलम कितने बन गए, 3 बन गए यहाँ पे, एंड रोज कितने बन गए, 2. तो इसका ऑर्डर देखो उल्टा हो गया, 2 by 3. इट वॉज प्रीवियसली 3 by 2, नाउ इट इज 2 by 3. दैट मीन्स 2 rows एंड 3 columns. होपफुली यू आर क्लियर विद दिस कंसेप्ट ऑफ द ट्रांसपोज, क्योंकि ये कंसेप्ट भी काफी काम में आने वाली है पूरे चैप्टर में आपको. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द टर्म सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, विच इज समवॉट बेस्ड ऑन द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी है उस पे ये सिमेट्रिक, एंड इसके आगे हम टॉपिक देखने वाले हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसमें ये कंसेप्ट्स काम में आने वाली है. लेट्स जस्ट सी व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. आई हैव रिटन ओवर देयर, इफ फॉर एनी मैट्रिक्स ए, इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, मतलब ए और उसका ट्रांसपोज दोनों की वैल्यू सेम आ रही होगी. देखो ये ए था, ये ट्रांसपोज था. जब, अब यहाँ पे तो सेम नहीं है, बट जब हम ट्रांसपोज निकालने के बाद उसकी वैल्यू सेम आती है ए और ए ट्रांसपोज की, तब उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. आई हैव गिवन द एग्जांपल ओवर हियर. यहाँ पे देखो ये ए पहला मैट्रिक्स था. अब कॉलम वाइज ही पढ़ रहा हूँ फिर से, ए एच जी, एच बी एफ एंड जी एफ सी. These are the columns. Now while writing the transpose, what am I going to do? I'm going to write these columns as a row. पहला कॉलम क्या, A H G, तो यहाँ पे पहला रो क्या बन जाएगा, A H G. पहला कॉलम पहला रो बन गया. सेकंड कॉलम क्या है यहाँ पे, H B F. It is going to become
the second row, second column is going to become second row. It was HBF over here, here HBF, second row. Third column GFC, third row GFC. That means I have taken columns into the row. That means this is A transpose. If you observe properly, both the matrices, both are exactly same. A, H, G, G, H, B, F, G is here, G is over here, F, C, C. That means it is exactly similar or same matrix. That means A is equal to A transpose. That's why this A matrix is called as symmetric matrix. I have written over here. Since A is equal to A transpose, A is the symmetric matrix. Any problem? यहाँ तक कुछ problem है आप लोगों को? Any problem? Okay. Now there is one more property which we are going to use in solving the examples for symmetric matrix. Aij is equal to Aji. जैसे हमने देखा था रो कॉलम उल्टा पुल्टा हो रहा है, रो की जगह कॉलम आ रहा है, कॉलम की जगह रोज आ रहा है. तो दिस प्रॉपर्टी Ij, I रिप्रेजेंट रो, J रिप्रेजेंट्स कॉलम, तो उसका उल्टा हो जाएगा. J फर्स्ट में आ जाएगा, I बाद में चला जाएगा, Ji. अब इसको सिमिलर सिंपल वे में आपको पता रहो कैसे लिखना है. देखो A12 इक्वल्स टू A21. देखो 1 2 था, उसका उल्टा हो गया, 2 पहले आ गया, 1 बाद में चला गया, तो इट हैज बिकम 2 1. दैट मीन्स A12 इज इक्वल टू A21. A23 हैज बिकम A32. इफ आई से आई वांट टू टेक A43, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, A34. Any problem? This is the property for symmetric matrix. Please keep this in mind because you are having two examples, one on a symmetric matrix where you have to use this property, and one example on next topic which is skew symmetric matrix. So we are going to see the next topic now, which is skew symmetric matrix. Now we have already seen about for the symmetric matrix that the A and its transpose, that is the matrix A and its transpose, should be same. The property is somewhat same for the skew symmetric, only minor changes over there. If for matrix, if A is equal to negative of A transpose minus of A transpose, previously it was A transpose, symmetric में क्या था, A is equal to A transpose था. Skew symmetric में क्या होता है, A is equal to negation और minus of A transpose. अगर ये condition वो follow करेगा, then that matrix is said to be skew matrix, skew symmetric matrix. Any problem? We will see one example on this. Your concepts will get clear. But जैसे previously हमने relation देखा था Aij और Aji का, the same relation we will see over here. This is Aij. I represent rows in which the element is present. J represents column. उसको इन्वर्ट कर दोगे तो J पहले आ जाएगा, I बाद में चला जाएगा बिकॉज ट्रांसपोज है वो. बट द ओनली डिफरेंस ओवर हियर इज माइनस. फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इट इज नेगेटिव ऑफ दैट एलिमेंट. तो लास्ट टाइम हमने देखा था A23 इज इक्वल टू A32 जैसे हमने सिमेट्रिक में देखा. बट हियर वी आर गोइंग टू राइट नेगेटिव साइंस. दिस इज द प्रॉपर्टी और ये यूज करके हमें एक एग्जांपल सॉल्व करना है. आई हैव टोल्ड यू यूजिंग these properties of the elements we are supposed to solve two questions in this particular exercise. Any problem till now? Now we'll see the example of the skew symmetric matrix so that your concept will get clear about the skew symmetric matrix. I have taken example of the matrix A where it is 0 minus 4 7 4 0 minus 5 minus 7 5 0. This is the matrix which is given to you. The very first thing I'm going to find the transpose of it, because without finding the transpose I cannot predict whether the given matrix is symmetric matrix or skew symmetric matrix. So first I'm going to find the transpose of the given matrix. Now again column wise it was 0 minus 4 7. The first column is 0 minus 4 7. तो first column transpose में क्या बन जाएगा, first row. तो ये जो 0 minus 4 7 था it has become 0 minus 4 7. That means first row. First column has become first row. 4 0 minus 5. 4 0 minus 5. That means second row has become a second column has become second row. Third minus 7 5 0 minus 7 5 0. That means third column has become third row. Any problem? Now I have to prove that it is skew symmetric. Negative, obviously by observation I can predict that it is a negative, but algebraically I want to show you that it is negative. So what am I going to do? I know it is not exactly same. 4 है यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे +4 है, +7 -7 -5 +5 +5 -5 -7 +7. That means it is same but the signs are different, signs are opposite.
So what am I going to do? I'm going to multiply these 1 and 2, both the LHS and RHS by -1, just to demonstrate you that how skew symmetric matrix does work. ठीक है? So I'm going to multiply both the sides by -1 or minus sign. You can see if I multiply this -1, so it will become minus A transpose. Here I have to multiply each and every term. We have seen the scalar multiplication. We are going to see the scalar multiplication. So -1, if I multiply this matrix, this -1 would be multiplied to each and every element of this matrix. अगर आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो मैट्रिक्स को, तो यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स बाय -1. सो व्हाट -1 मतलब क्या, वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, सिर्फ साइंस चेंज हो रहे हैं. तो यहाँ पे जो कोई भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं उसके सिर्फ साइन चेंज करने. 0 एज इट इज रहेगा, +4 विल बिकम -4, -7 will become +7, -4 becomes 4, 0 as it is, 5 becomes -5, 7 becomes -7, -5 is +5 and 0 as it is. If you observe properly this matrix, I am boxing it, I am highlighting it. ये मैट्रिक्स है आपके पास which is A, और ये मैट्रिक्स क्या आपके पास -A ट्रांसपोज. इफ यू ऑब्जर्व प्रॉपरली these two boxes are exactly same. ये जो दो मैट्रिसेस आपको दिख रहे हैं एग्जैक्टली सेम है. इसका मतलब क्या हो जाएगा, -AT इज इक्वल टू A, -A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A. दैट मीन्स A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज. और ये जब कंडीशन फॉलो करता है, जैसे कि हमने देखा था A इज इक्वल टू निगेशन ऑफ A ट्रांसपोज, तब उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स. एनी प्रॉब्लम आप लोगों को अब तक? इट इज क्वाइट बेसिक, वी हैव स्टार्टेड विद इट. और ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज के लिए काफी बेसिक ऑपरेशन से ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. इन अ न्यू सिलेबस दे हैव सॉर्टेड आउट द algebra in 2 parts. In the previous syllabus there was one whole exercise on all the operations, but now they have sorted out the syllabus quite well. So for this exercise we are having quite basic operations on the matrices. Any problem? Please see it once. If you are having any doubt, please ask. The next topic which we are having is equality of the matrices. Equality itself tells us that equal. When the two matrices are said to be equal, simple logic याद रखो, दिखने में सेम दिख रहे तो वो इक्वल है. इफ दे आर विजिबली सेम, आपको दिखने में एग्जैक्ट सेम दिख रहे तो वो सेम है, बट दिस इज लॉजिकल वन. बट इफ यू वांट टू tell that two matrices are same or not, or equal or not, you have to give the proper definition in mathematical terms. So for that we are having few parameters. Two matrices are said to be equal if the order of A is equal to order of B. I have considered two matrices A and B. अब उनको इक्वल कब कहा जाएगा, जब उनके ऑर्डर सेम है. ऑर्डर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम. दैट मीन्स दे शुड बी सिमिलर. उनका रोज, अगर पहले इसमें 2 रोज है, सेकंड इसमें भी 2 रोज होने चाहिए. फर्स्ट इसमें 3 कॉलम्स है, सेकंड इसमें भी 3 कॉलम्स होने चाहिए. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. एंड सेकंड कंडीशन, एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन ए एंड बी आर सेम. मतलब ए और बी का हर कोई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट. अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब विजिबली आपको बता दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है. ये जो एलिमेंट आपको दिख रहा है, अब देखो ये फर्स्ट रो है R1, दिस इज R2, दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. सिमिलर R1, R2, दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. नाउ इफ यू वांट टू प्रेडिक्ट द न्यूमरेशन फॉर दिस पर्टिकुलर टर्म इन द एलिमेंटल टर्म्स, दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 क्या हो जाएगा आपका, A11. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आपके पास 1. अब सेकंड इसके लिए उसी पोजीशन पे, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन है, 1. मतलब ये दोनों कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग. बट इफ यू डोंट हैव टू गो इन दैट मच डिटेल. इफ यू रिमेंबर बाय विजुअलाइजेशन ऑल्सो यू कैन टेल. यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5, 3, 3, 2, 2, 7, 7, 9, 9. These two matrices are exactly same. Visibly only you can tell whether they are equal or not. But in mathematical terms, if you want to cross check, what is the order of this? That means number of rows and columns. How many rows are there? 2. So 2. How many columns? 3. So order of A is 2 by 3. Similar over here, 2 rows, 3 columns. So इसकी order भी कितनी हो जाएगी, 2 by 3. That means both are having same order plus all the corresponding elements are same. So these can be termed as the equal matrix or equality of the matrix. Any problem till now? Next we'll start with the addition and the subtraction of the matrices. Please pay attention. For any matrices to be added or subtracted, किसी भी matrices का addition या subtraction करने के लिए one thing which is must, जो चीज होनी चाहिए, that the matrices should be of equal order.
समझ लो फिर से ये चीज, अगर आपको किन्हीं दो मैट्रिसेस का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है, उसके लिए सबसे बेसिक चीज है या फिर यू कैन से रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है कि दोनों मैट्रिसेस की ऑर्डर सेम होनी चाहिए। अगर अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिसेस है तो उनका एडिशन सब्सट्रैक्शन हम नहीं कर सकते हैं। वाई वो भी देख लेंगे आगे। अब सबसे पहले एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस देते हैं, द मैट्रिसेस शुड बी ऑफ इक्वल ऑर्डर। तो आई हैव टेकन टू मैट्रिसेस ओवर हियर, ए 2 3 1 -1 -2 0, बी -4 3 1 5 7 -8। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस? विजिबली बता सकते हो, 2 रो 3 कॉलम है तो 2/3, इसके लिए भी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है तो 2/3, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है। दैट मीन्स वी कैन ऐड दिस। अब हम उनका एडिशन करते हैं। आपको बोला गया देखो a एंड b, तो आई एम एडिंग देम a प्लस b। तो व्हाट डू हैव टू डू? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विजिबली देखो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन है? मैं अभी यहाँ पे मार्क करूं, ये 2 है, ये किसके साथ होगा? यहाँ पे 4 के साथ, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। इफ आई से 3, ये 3, ये किसके साथ होने वाला है? ये 3 वाले के साथ। दिस 1 इज गोइंग टू बी करस्पॉन्डिंग विथ द नेक्स्ट वन, मतलब 2 इज करस्पॉन्डिंग विथ -4, 3 इज विथ 3, 1 इज विथ 1, -1 इज करस्पॉन्डिंग विथ 5, -2 इज करस्पॉन्डिंग विथ 7 एंड 0 इज करस्पॉन्डिंग टू -8। तो हमें करना क्या है? जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है सिर्फ उनको ऐड करना है, ऐड या सब्सट्रैक्ट व्हाट इट मे बी, जो ऑपरेशन होगा वो हम परफॉर्म करने वाले। गॉट इट? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एडिशन, दैट्स इट। नाउ हियर इट इज 2 प्लस व्हाट इज देयर? -4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 प्लस -4 क्या बन जाएगा? 2 -4। इसी जगह पे लिखा मैंने, इट वॉज A11 प्रीवियसली, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे भी A11 की जगह पे मैंने 2 -4 लिया। नेक्स्ट देयर इज 3, हियर ऑल्सो 3 प्लस 3 आई हैव रिटन इट ओवर हियर। Similarly 1 plus 1 I have written over here. Similarly next -1 plus 5 I have written it over here. -2 plus 7 I have written it over here. 0 plus minus minus, so 0 -8, 0 -8 I have written. Addition subtraction तो basic है ये calculation। 2 -4 आ जाता है -2, 3 plus 3 is 6, 1 plus 1 is 2, -1 plus 5 is +4, -2 plus 7 is 5 and 0 -8 is -8. That means the addition of a plus b is nothing but -2 6 2 4 5 -8. Any problem in the addition? Addition बहुत बेसिक चीज है, बट इसमें भी कभी कभार प्रॉब्लम आ जाते हैं बच्चों को। That's why do not take it so lightly. Be so sure that you have understood this concept. Similar for the subtraction. सब्सट्रैक्शन के टाइम पे भी कौन से मैट्रिक्स चाहिए हमें? इक्वल ऑर्डर के। तो मैंने दो मैट्रिसेस यहाँ पे कंसिडर करें। वन इज ए विच इज -1 3 0 4 -2 5. Next B, -1 2 4 5 -6 and 9. What is the order of this? As you can see, 3 rows are there, -1 4 3 2 and 0 5, and 2 columns are there, -1 3 0 4 -2 5. Similarly, if you observe property हो रही, इसकी भी ऑर्डर कितनी हो जाएगी? 3/2. That means we can subtract this. तो सब्सट्रैक्शन के लिए क्या करोगे? A minus B, दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की वैल्यूज लिख ली, ये मैट्रिक्स में से ये सब्सट्रैक्ट करना है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखो, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा होगा? यस, यू आर गेजिंग इट राइट। -1 का करस्पॉन्डिंग कौन है? -1। 4 का करस्पॉन्डिंग कौन है? 5। 3 का करस्पॉन्डिंग कौन है? 2। -2 का करस्पॉन्डिंग कौन है? -6। 0 का करस्पॉन्डिंग है 4 एंड 5 का करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो कौन सा है वहां पे? 9। तो वी विल सॉल्व इट नाउ। -1, अब देखो, बी सो केयरफुल, -1 -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो -1 + 1, देखो यहाँ पे लिखा है -1 + 1। 4 -5, यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं, इसके डायरेक्ट लिखो 4 - 5, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 4 - 5। हियर इट इज 3 -2, तो मैंने यहाँ पे 3 - 2 लिख लिया। -2 -6, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, मतलब -2 + 6, देखो यहाँ पे लिख लिया -2 + 6। सेम 0 -4, 0 -4, 5 -9, 5 -9। इफ यू डू द कैलकुलेशन, -1 + 1 यहाँ पे देखो 0 बन गया, 4 - 5 यहाँ पे -1 बन गया, 3 - 2 यहाँ पे 1 बन गया, -2 + 6 यहाँ पे +4 बन गया, 0 -4 यहाँ पे -4 बन गया, एंड 5 - 9 हैज बिकम -4 over here. So this is nothing but the final answer for A minus B. Any problem? समझ में आ गया कंसेप्ट? ये कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला एक और टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो जाके काफी इजी है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी मैट्रिसेस बाय अ नंबर।
एक नंबर से जब आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको क्या कहा जाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स विद अ नंबर। अब देखो यहाँ पे ए का एग्जांपल है, ए का मैंने मैट्रिक्स ले लिया, मैट्रिक्स आपके पास है 2 9 -4 13 -7 2। अब मैंने 2a फाइंड करना है, 2a मतलब क्या, 2 इंटू ए, मतलब मैट्रिक्स को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नंबर से। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब ही क्या है, मल्टीप्लाइंग एनी मैट्रिक्स बाय अ नंबर। सो अगर ये देखो 2 इंटू ए की जगह ए की वैल्यू लिख रही है, 2 एज इट इज है, ए की जगह मैट्रिक्स लिख लिया। व्हेन यू आर डूइंग स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमने प्रीवियसली देखा था, दिस 2 वुड बी मल्टीप्लाई टू ईच एंड एवरी टर्म ऑफ द मैट्रिसेस। किसी भी एक दो रो को मल्टीप्लाई करके छोड़ देना नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट में ऐसा था आपको, तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। बट यहाँ पे बी सो श्योर, जो कोई भी नंबर आप बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हो, इट वुड बी मल्टीप्लाई टू ईच एंड एवरी टर्म ऑफ द मैट्रिसेस। सो दिस 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 9 18, 2 इंटू -4 -8, 2 इंटू 3 is 6, 2 इंटू -7 is -14 एंड 2 इंटू 2 is 4। दैट मीन्स 2a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 18 -8 6 -14 एंड 4। एनी प्रॉब्लम इन दिस? एक बार टॉपिक देख लो, जो कुछ भी हमने अभी देखे, वॉट एवर वी हैव सीन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 2.2। इन एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 we are going to solve. Now in question number 1, what is given? They have said if a is equal to 2 5 -6 -3 -4 1, b is equal to -1 2 0 2 2 3 and c is equal to 4 -1 -2 3 4 1। ये आपको a b और c की वैल्यूज उन्होंने वहां पे बताई है, एंड उन्होंने क्या बोला है, शो दैट a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a एंड a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। अब पहला वाला तो समझने में इजी है, सेकंड वाला थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसमें भी एबीसी है एबीसी है, तो प्रॉब्लम क्या है, जब आप तीनों का एडिशन कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, ये ब्रैकेट में a प्लस बी, दैट मीन्स फर्स्ट यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस ब्रैकेट, एंड ये ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आप किस में ऐड करोगे, सी में। उसका उल्टा यहाँ पे करना, देखो ये दोनों ब्रैकेट में, मतलब फर्स्ट यू हैव टू डू द एडिशन ऑफ b प्लस सी, एंड इनका एडिशन का जो आंसर आएगा वो किस में ऐड करोगे, a में। दैट इज द ओनली डिफरेंस। अब हमें दोनों का अलग से एडिशन करके बताएं, तो फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस a प्लस b प्लस है। द वेरी फर्स्ट थिंग a प्लस बी में मैंने क्या किया, a और b दोनों के वैल्यूज लिख लिए। a क्या था हमारे पास, 2 5 -6 -3 -4 +1, b प्लस दिख लिया बीच में, a प्लस बी, इसके लिए प्लस लिख लिया। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 2 0 2 2 3। अब जैसे कि मैंने बोला है एडिशन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ मैंने शॉर्टकट यूज किया, मैंने ऐसे लिखते नहीं बेटा 2 + -1 वगैरह, दिस इज अंडरस्टूड। Okay, now we are in 12th, so we can solve this small queries. 2 plus -1 plus minus minus, so 2 minus 1, 2 minus 1 कितना बन जाता है, +1। Similarly -3 plus 2, तो -3 plus 2 कितना बन जाएगा, -1। Same 5 plus 2, 5 plus 2 कितना बनेगा, 7। -4 plus 2, -4 plus 2 कितना बनेगा, -2। -6 plus 0 it is -6 and 1 plus 3 it is 4। मतलब a प्लस b की वैल्यू मुझे क्या मिल गई यहाँ पे, 1 7 -6 -1 -2 4। तो इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया, फर्स्ट नंबर दे दिया। अब a प्लस बी निकाल दिया LHS। अब RHS क्या हमारे पास, b प्लस है, तो अभी मैं फाइंड करूंगा b प्लस है। पिछली बार a पहले लिखा था, b बाद में लिखा था, अभी मैं b पहले लिखूंगा और a बाद में लिखूंगा। वो एलिमेंट्स मैंने एज इट इज लिख लिए, वो मैट्रिसेस हमने लिख लिए, ये बी मैट्रिक्स है और ये ए मैट्रिक्स है। अब एडिशन करते हैं उनकी, -1 प्लस 2 कितना बनेगा वो, इट इज +1। 2 प्लस -3, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 2 -3, 2 -3 कितना होता है, -1। 2 प्लस 7, 2 प्लस 5 विच इज 7, देन 2 प्लस -4, प्लस माइनस माइनस, so 2 -4, 2 -4 कितना बनेगा, -2। 0 प्लस -6, प्लस माइनस माइनस, मतलब 0 -6 कितना बन जाएगा, -6 एंड 3 प्लस 1 विच इज 4। तो ये किसका वैल्यू आ गया, कौन सी मैट्रिक्स का वैल्यू आ गया अपने पास, b प्लस ए के लिए, तो इसको मैंने सेकंड नंबर दे दिया। इफ यू ऑब्जर्व प्रॉपरली, a प्लस बी का जो आंसर है और ये b प्लस ए का जो आंसर है एग्जैक्टली सेम है, मतलब वो दोनों क्या है, इक्वल है। इसके लिए मैंने नीचे लिख दिया, देखो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन कंक्लूड दैट a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, हेंस प्रूव्ड। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ ये क्वेश्चन में, एक बार ठीक से देख लो ये क्वेश्चन। इफ यू हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क। वी विल स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट विच इज a प्लस बी प्लस सी
आपको दिखाना है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब पहले मैंने डिफरेंस बता दिया था, जो ब्रैकेट है वो सॉल्व करना है। तो फर्स्ट आई एम कंसिडरिंग द LHS नाउ, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों ब्रैकेट में, तो फर्स्ट ऑपरेशन किन दोनों का होगा, ए और बी का। तो सिमिलरली आई हैव रिटन ए बी एंड सी, तीनों मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिख लिए जो अभी दिए गए थे एग्जांपल में, इन द क्वेश्चन itself they have given matrix A B C. Now we are going to add A and B. If you can refer the previous part, we have already added A plus B. A plus B already add करके हमने यहाँ पे रखा था, which is 1 7 minus 6 minus 1 minus 2 4. So इन दोनों का एडिशन देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा 1 7 minus 6 minus 1 minus 2 4. ये किसका एडिशन हो गया, A plus B. This is the addition for A plus B. It should be added to C. C क्या है हमारे पास, 4 minus 1 minus 2 3 4 1. तो 4 minus 1 minus 2 3 4 1. I have written it over here. Now we'll see the addition for this corresponding. 1 plus 4 5 minus 1 plus 3 plus 2 7 plus minus 1 मतलब 7 minus 1 it is going to be 6 minus 2 plus 4 plus 2 minus 6 plus minus 2 that means minus 6 minus 2 minus 8 4 plus 1 which is equal to 5. That means ये जो फर्स्ट LHS था A plus B फर्स्ट सॉल्व करना है, उसमें C ऐड करना है. That answer we have got as 5 6 minus 8 2 2 5. We have given it as equation 3. Next the RHS. What is the RHS? A plus B plus C. That means we have to add B and C first. So again I have written A plus B plus C and A matrix A matrix B and matrix C तीनों को मैंने साथ में लिख लिया. Now I have to do calculations. इन दोनों को ऐड करना है. ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन. मैंने तो यहाँ पे सॉल्व करके दिया है, बट ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो दिख रहे हैं -1 4 का एडिशन करो, देन डू द एडिशन ऑफ 2 and 3, देन डू द एडिशन ऑफ 2 and -1 2 4 0 -2 3 and 1. If you add them correctly, you are going to get the answer as 3 1 -2 5 6 4. ये आंसर हमें किसका मिला था, इन दोनों का. उसको किस में ऐड करना है, ए में ऐड करना बाकी है. तो दिस ए आई एम गोइंग टू राइट एज इट इज ओवर हियर. This A is 2 5 minus 6 minus 3 minus 4 1 and this is nothing but the addition of B and C. B और C का एडिशन करके हमें ये मिला है. Now we'll do the calculation part for this. एडिशन करना है 2 plus 3 it is 5 minus 3 plus 5 it is 2 5 plus 1 6 minus 4 plus 6 plus 2 minus 6 plus minus 2 that means minus 6 minus 2 minus 8 1 plus 4 5. मतलब जो RHS थी हमारी उसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 5 6 minus 8 2 2 5. If you observe equation 3 भी, हाँ एडजस्ट कर रहा हूँ, इक्वेशन 3 क्या आया था 5 6 minus 8 2 2 5. इक्वेशन 4 भी क्या आया 5 6 minus 8 and 2 2 5. That means third and fourth equation both are same, and third equation represent A plus B plus C where A and B are in bracket, and fourth equation represent A plus B plus C where B and C are in bracket. That means from 3 and 4 we can conclude that A plus B plus C is equal to A plus B plus C, hence proved. Any problem in this particular question? I have already shared the notes with you. These solved notes I have given you in the PDF format. You can refer those notes if you want to solve this. Any problem? Okay, we'll start with the next question now. The next question which we are going to solve, in that question they have given us two matrices A and B. The question is like that, A is given to you, B is given to you, and they have said find the matrix C such that sum of all the matrices is 0. मतलब आपको C ऐसा मैट्रिक्स फाइंड करना है कि जब आप A, B और C तीनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आने वाला है 0 आने वाला है. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस. द A इज गिवन टू यू विच इज 1 -3 0 2 7 -6 -3 -8 1. दिस इज A. व्हाट इज मैट्रिक्स B? 9 -4 4 -1 2 0 2 5 -3. These two matrices are given to you. Let's just consider the third matrix is C. They have asked you to find the value of C. तो आपको कंडीशन क्या दी है, तीनों का एडिशन 0. दैट मीन्स A plus B plus C is equal to 0. Let's just put the values which are known to you. We know the value of matrix A and B. तो I have put the value of A plus, यहाँ पे B है तो सेकंड मैट्रिक्स B प्लस अगला कौन है C. C का वैल्यू हमें पता नहीं तो I have written C over here is equal to 0. We are just following the conditions or the statements
or the information which is given in the example. Now what we can do in this, what can we do? C और 0 को कुछ कर नहीं सकते. We are having these two matrices, तो we can do the addition of these two. इन दोनों का सम कर लेते हैं. तो अगर सम करोगे 1 + 9 10, 2 - 1, अभी ये प्लस है, 2 + माइनस मतलब 2 - 1 1, -3 + 2 -1, -3 + -4 दैट मीन्स -3 - 4 वो हो जाएगा -7, 7 + 2 इट इज गोइंग टू बी 9, -8 + 5 इट इज -3, 0 + 4 + 4, -6 + 0 -6, 1 + -3 + -1 -3 it is -2, plus C as it is equal to 0 be as it is. That means we have added these two matrices. Now we are having this particular question, this particular relation. Now we want to find the value of C. C की वैल्यू फाइंड करनी. इसके लिए एक सिंपल वाला लॉजिक यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करके दिया. इफ आई से 4 + C is equal to 0, if I say 4 + C is equal to 0, I want the value of C. तो what do I have to do? I have to shift this 4 over there. अब ये 4 यहाँ पे क्या है? एडिशन. वहां पे जाके क्या होगा? सब्सट्रैक्शन, दैट इज नेगेटिव, राइट. तो +4 वहां पे जाके क्या बन जाएगा? -4. तो C की वैल्यू क्या आ गई? -4. सेम आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर. ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स plus C is equal to 0. If I want the value of C, I have to shift this matrix over there. मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है? एडिशन में. वहां पे जाके क्या होगा? माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, राइट. सो आई एम राइटिंग C एज इट इज. C यहाँ पे लिख लिया, देखो ये C एज इट इज लिख लिया, इक्वल्स टू ये वहां पे शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव था, अभी क्या बन गया? निगेटिव. देखो माइनस, एंड ये मैट्रिक्स मैंने एज इट इज लिख लिया. दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस कांसेप्ट कि ये कांसेप्ट समझने में इजी जाएगा. अब माइनस का मतलब क्या होता है? -1. अब ये माइनस साइन से आपको मल्टीप्लाई करना है. दैट मीन्स यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ ईच एंड एवरी. मैंने पहले ही बोला था, कोई भी नंबर होगा उसका उससे मल्टीप्लाई कर रहे हो. माइनस का मतलब क्या है? -1. अगर आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इट शुड बी मल्टीप्लाई टू ईच एंड एवरी टर्म ऑफ द मैट्रिक्स. तो क्या हो जाएगा? सब लोगों के साइंस उल्टे हो जाएंगे. वॉट एवर द साइंस आर हियर ओवर देयर वी आर गोइंग टू चेंज देम. मतलब प्लस होगा तो उसको माइनस लिखना है, माइनस होगा तो उसको प्लस लिखना है. तो इट वॉज +10 प्रीवियसली, अभी हो गया -10. -7 का हो गया +7, +4 has become -4, +1 -1, 9 has become -9, -6 has become +6, -1 has changed to +1, -3 has become +3, -2 has become +2. This is nothing but the value of C. This is the matrix C, which when added to A and B gives the answer as 0. Any problem till now? इसमें कुछ प्रॉब्लम है अब तक? समझ में आ गया आप लोगों को? Are you sure about this? Okay, प्लीज सी इट वंस, एक बार ठीक से देख लो. मैंने ये कंसेप्ट, ये ज्यादा क्रिटिकल पार्ट है उनका. मैट्रिक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जैसे मैंने बोला 4 + C = 0 अगर मैं कर रहा हूँ, एंड इफ आई वांट द वैल्यू ऑफ C देन आई हैव टू शिफ्ट 4 ओवर देयर, एंड 4 यहाँ पे प्लस है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस. सेम आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर. आई एम गोइंग टू शिफ्ट दिस ओवर देयर, इट इज पॉजिटिव ओवर हियर. वहां पे शिफ्ट होने के बाद क्या होगा? माइनस हो जाएगा, एंड यू विल गेट योर आंसर्स. एनी प्रॉब्लम? इसके लिए एक और कंसेप्ट आप दिमाग में रख सकते हो. इफ यू डोंट वांट दिस मैट्रिक्स ओवर हियर तो क्या करोगे? दोनों साइड में इस मैट्रिक्स को माइनस करो. यहां से भी माइनस करो, वहां से भी माइनस करो. यहां से माइनस करोगे तो ये मैट्रिक्स और माइनस करने वाला मैट्रिक्स कट हो जाएगा, और यहाँ पे 0 में से वो मैट्रिक्स माइनस होगा, तो बाय डिफॉल्ट आपको यही आंसर मिलने वाला है. दिस इज इजियर वन. इफ यू आर गुड विद इट देन गो विद दिस पर्टिकुलर मेथड ओनली. प्लीज सी इट वंस. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क. Now we'll see the question number 5 of exercise 2.2, in which they have given you matrix A. A आपको दिया गया है, and they have asked you ट्रांसपोज ऑफ A ट्रांसपोज. दैट मीन्स पहले आपको A ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा एंड फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है. दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ A ट्रांसपोज. ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं. अब A आपको क्या दिया गया है? 5 3 1 2 -4 0. ये आपको A दिया गया है, विच इज हैविंग द ऑर्डर ऑफ 2 × 3, 2/3 की ऑर्डर, इसको 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. नाउ फर्स्ट इसको फाइंड करना है, तो पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? A ट्रांसपोज. तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड कर रहा हूं यहाँ पे? A ट्रांसपोज. ट्रांसपोज ऑफ A. ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? इंटरचेंजिंग रोज एंड द कॉलम्स. अब यहाँ पे कितने रोज है? 1 और 2 रोज है. अब मैं क्या करता हूँ? जो कम होता है उसको चेंज करता हूं मैं, क्योंकि 3 से भले 2 बार ऑपरेशंस करे. 2 इफ यू डू द कैलकुलेशंस 2 times देन द 3 इट इज बेटर फॉर यू. सो नाउ आई एम इन 2 rows. फर्स्ट रो इज 5 1 -4 and second row is 3 2 and 0. Now what do we have to do? We have to convert or transpose this matrix. So what I'm going to do? I'm going to write this row as column. First row will become first column. First row क्या यहाँ पे? 5 1 -4. 5 1 -4. First row has become first column. Same second row 3 2 0.
3 2 0. Second row has become second column. This is nothing but A transpose. If you can observe, the order previously was 2 by 3. Now after transposing the matrix, the order has become 3 by 2. मतलब उल्टा हो गया. पहले 2 rows and 3 columns थे, अभी 3 rows and 2 columns हो गए. But we are not finished with the example yet. They have asked you the transpose of A transpose. मतलब ये जो आंसर आपको मिला है, this A transpose, you have to take the transpose of it. तो है देखो, आई एम राइटिंग A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. अब यहां पे ध्यान दो, ये 2 कॉलम्स है. अब उनको रोज में लिखता हूं. कॉलम क्या आपके पास 5 1 -4. फर्स्ट कॉलम इज 5 1 -4. इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट रो 5 1 -4. सेकंड कॉलम क्या है यहाँ पे 3 2 0. This second column is going to be second row over here 3 2 0. Now as you can see, we have taken transpose of A transpose, and if you observe properly, it is not asked in the question, but if you observe properly, A and transpose of A transpose both are having the same value. ये भी 5 1 -4 3 2 0, ये भी 5 1 -4 3 2 0. तो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन लिख के दिया, जो जरूरी नहीं है क्वेश्चन के लिए, बट ये प्रॉपर्टी कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पूछी जा सकती है. सो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है, इट इज नथिंग बट द ओरिजिनल मैट्रिक्स E. एनी प्रॉब्लम? एक बार देख लो ये क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन से ज्यादा कुछ डिफिकल्ट इसमें था नहीं, तो प्लीज रिफर दिस क्वेश्चन प्रॉपरली. द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू सॉल्व इज क्वेश्चन नंबर 8. In question number 8, they have given you matrix A. Matrix I am reading once. 0, y, 3 by 2, minus 5i, 0, minus under root 2, x, z and 0. Any problem? This matrix is given to you and they have said that this matrix is skew symmetric. मतलब आपको बताया गया है कि ये जो मैट्रिक्स आपके सामने लिखा है वो कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. एंड दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z. अब सबसे पहले ट्राई टू रिकॉल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्या देखा था हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए? दैट इज A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज. एक और चीज जो हमने इसमें देखी थी वो क्या थी? A ij इज इक्वल टू माइनस A ji. ये हमने प्रॉपर्टी देखी थी उसकी. Aij इज इक्वल टू माइनस AJI. एनी प्रॉब्लम? वो प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे यूज करनी है. तो आई हैव रिटन द मैट्रिक्स. Then as they have given that A is the skew symmetric matrix. For skew symmetric matrix we know that Aij is equal to minus Ji. उसका मतलब भी मैंने बताया था. If I say A13 तो वो किसको इक्वल होगा? उसका उल्टा करो, 1 3 का क्या बन जाएगा? 3 1 बन जाएगा, बस साइन क्या होगा? माइनस. ये स्क्यू सिमेट्रिक के लिए. और सिमेट्रिक के लिए हमने क्या देखा था? क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके पहला का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे. तो सिमेट्रिक के लिए अभी यहीं पे एक्सप्लेन कर दो. सिमेट्रिक जब होता है मैट्रिक्स कोई भी, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है? Aij इज इक्वल टू AJI. इसी वीडियो में मैंने जब थियरी एक्सप्लेन करी है प्रीवियसली, उसमें आई हैव एक्सप्लेन यू दिस टर्म्स. दैट मीन्स अगर मैं FA31 लिया तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? A13. यहाँ पे साइंस चेंज नहीं हो रहे, सिर्फ हम पोजिशन चेंज करें. बट फॉर स्क्यू सिमेट्रिक इट इज निगेटिव. So Aij is equal to minus AJI. Now I want the value of x, y and z. तो उसके लिए I'll write something. Wait a minute. R1, R2, R3. ये हॉरिजॉन्टल, ये C1, ये C2, ये C3. अब इसकी मुझे पोजीशन चाहिए, मुझे A के टर्म्स में लिखना है. A के टर्म्स में मैं जब लिखना चाहता हूं, then I want रो एंड कॉलम. x कौन सी रो में है? इट इज इन फर्स्ट रो, तो A1. कौन से कॉलम में है वो? थर्ड, तो A13. मतलब ये x जो है हमारा वो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में 1 3. 1 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रो, 3 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम इन विच इट इज सिचुएटेड. तो आई हैव टेकन A13 ओवर हियर. अब समझ में आ गया डायरेक्टली A13 क्यों लिया? बिकॉज आई कैन ऑब्जर्व हियर आई वांट द वैल्यू ऑफ x. अगर x की वैल्यू चाहिए तो x कौन सी पोजीशन पे है उसकी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी. x कौन सी पोजीशन पे यहाँ पे? A13. सो आई हैव टेकन A13. स्क्यू सिमेट्रिक है, इसके लिए माइनस साइन लिख लिया. और यहाँ पे क्या होगा? 1 3 का क्या बन जाएगा? 3 1. 3 1 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. अब A13 हमारे पास x है, देखो A13 x मैंने यहाँ पे लिख लिया. नाउ माइनस साइन भी मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया. नाउ आई वांट टू फाइंड A31. 31 का मतलब क्या है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. थर्ड रो ये दिख रही थर्ड रो, और फर्स्ट कॉलम कौन सा एलिमेंट है? ये वाला एलिमेंट. ये जो एलिमेंट है वो थर्ड रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में, विच इज 3/2. तो मैंने यहाँ पे 3/2 लिख लिया. फिर से ध्यान दो, स्क्यू सिमेट्रिक. फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स द रिलेशन विच वी आर हैविंग इज Aij is equal to minus AGI. That means if I write A13,
सो इट वुड बी इक्वल टू निगेशन ऑफ A31। अब A13 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 31 का मतलब क्या होता है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो A13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। मैंने A13 क्यों लिया, क्योंकि आपको x y z की वैल्यू पूछे, तो x का पोजीशन मुझे चाहिए था। x का पोजीशन क्या है यहाँ पे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दैट इज A13, इसके लिए मैंने यहाँ पे A13 ले लिया। A13 माइनस ऑफ A31, A13 की वैल्यू x एज इट इज, माइनस साइन भी एज इट इज। अब A31, 31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो कौन सी, ये वाली, फर्स्ट कॉलम कौन सा, ये वाला, कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, ये वाला। दिस 3/2 इज इन third row and first column, so I have written 3/2 as it is. That means you have got the value of x as minus 3/2. Next what do we want, we want the value of y। तो y की पोजीशन पहले पता होनी चाहिए। इट इज इन सेकंड रो, a लिख रहा हूं, सेकंड रो दैट मीन्स 2, एंड कौन से कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट, तो वो क्या हो जाएगा A21। मुझे A21 का रिलेशन चाहिए, क्या रिलेशन आएगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ A12, 21 का बन गया 12, वही मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, देखो A21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A12, ठीक है। A21 क्या है हमारे पास, y, तो A21 y लिख लिया मैंने यहाँ पे। अब माइनस साइन यहाँ पे था, ये भी माइनस लिख लिया। नाउ आई वांट A12, A12 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। व्हाट इज फर्स्ट रो ओवर हियर, ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम कौन सा है उनके लिए कॉमन एलिमेंट, -5i, -5i इज द एलिमेंट, -5i is the element which is there in row 1 and second column, so I am writing -5 along with the sign, do not forget the sign। ये माइनस साइन कौन सा है, फॉर्मूला वाला माइनस साइन है, और A12 की वैल्यू कौन सी, -5, तो -5 प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 5i। एनी प्रॉब्लम। सिमिलरली फॉर द z, इफ यू ऑब्जर्व प्रॉपरली फॉर z है सेकंड रो में एंड थर्ड कॉलम में, 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 3, तो आई हैव टेकन A23 इज नथिंग बट निगेशन ऑफ A32, 2 3 का 3 2 बन गया। A23 मैंने z यहाँ पे लिख लिया, 3 2 मतलब क्या, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम कौन सा एलिमेंट है, -2, तो ये माइनस साइन मैंने यहाँ पे माइनस एज इट लिख लिया, यानी -√2 अंदर लिख लिया, माइनस माइनस प्लस, तो z की वैल्यू कितने आ गए, √2, मतलब x की वैल्यू -3/2, y की वैल्यू +5i एंड z की वैल्यू +√2। अंडरस्टूड दिस। ये एग्जांपल मैंने जानबूझ के लिए, इसके प्रीवियस वाला सिमेट्रिक वाला था जिसमें नेगेटिव के साइन नहीं थे, तो वो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कवर नहीं किया। दैट क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इफ वंस यू आर क्लियर विद दिस पर्टिकुलर concept. Any problem, please see it once. If you're having any doubt, do not hesitate to ask. Now we are going to solve question number 9. In the question number 9 it is given that for the following matrices find the transpose of the matrix and state whether they are symmetric, skew symmetric or neither of them. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी मैट्रिक्स दिया जाएगा उसका आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है। एंड ट्रांसपोज हमें पता है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी सिमेट्रिक अगर होगा, आई एम राइटिंग हियर, सिमेट्रिक अगर होगा तो क्या होता है, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, मतलब आपने जो ट्रांसपोज फाइंड किया वो ओरिजिनल मैट्रिक्स से सेम आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। इफ A इज इक्वल टू निगेशन ऑफ A ट्रांसपोज, मतलब आपने जो ट्रांसपोज फाइंड किया है उसका निगेशन और ओरिजिनल मैट्रिक्स सेम होगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ये दोनों फॉलो नहीं कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा, नाइदर, मतलब दोनों में से कोई नहीं। तो लेट जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड सॉल्व करने वाले। 3 सब क्वेश्चन है, 1 2 3। सेकंड क्वेश्चन में जानबूझ के सॉल्व कर रहा हूं, दैट मींस 1 एंड 3 कैन बी सॉल्व बाय योर साइड। सो A इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन ओवर हियर, ये क्या दिया आपको, 2 -5 -1 5 4 -6 1 6 3। Now first the thing we have to find the transpose of A. Transpose of matrix A is A transpose. अब A transpose क्या करोगे, जो यहाँ पे कॉलम दिख रहे हैं उनको रोज लिख लो। पहला कॉलम क्या है, 2 -5 -1, उसको क्या बनाऊंगा, फर्स्ट कॉलम वुड बिकम फर्स्ट रो, 2 -5 -1 2 -5 -1। सेकंड कॉलम 5 4 6, सेकंड रो 5 4 6। थर्ड कॉलम 1 6 3, थर्ड रो 1 6 3। यहाँ पे 3 रोज 3 कॉलम्स थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 रोज 3 कॉलम्स, दैट मीन्स ऑर्डर वुड बी सेम, सिर्फ रोज की जगह कॉलम्स आ गए, कॉलम्स की जगह पे रोज आ गए। अब ऑब्जर्व करो प्रॉपरली, सबसे पहले कैसे चेक करना है, A एंड A ट्रांसपोज सेम है कि नहीं। इफ यू ऑब्जर्व प्रॉपरली, यहाँ पे -5 यहाँ पे +5 सेम नहीं है, -1 +1 सेम नहीं है, +5 -5 सेम नहीं है, 4 ये सेम है, -6 +6 सेम नहीं है, मतलब ऑल द एलिमेंट्स आर नॉट सेम। तो इसके लिए इन दोनों को सेम कह सकते हैं क्या हम, नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू डू, ऑलवेज कीप इन माइंड, जब कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फर्स्ट चेक फॉर A एंड AT, दैट मीन्स A एंड A ट्रांसपोज। इफ दे आर सेम, स्टॉप देयर ओनली। अगर ये दोनों सेम आ जाएंगे A और A ट्रांसपोज, तो वो सिमेट्रिक बन गया। अगर वो सेम नहीं आए तो गो फॉर द नेक्स्ट वन,
किसके लिए, स्क्यू सिमेट्रिक, निगेशन के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, निगेटिव फाइंड करना। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है, बट मैं दोनों इसको, ये LHS है, ये इक्वल टू का साइन है और ये RHS है, दोनों को निगेटिव से मल्टीप्लाई करो। इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय -1 -80 एंड इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना, मतलब सारे के सारे साइन चेंज होंगे। दैट मीन्स 2 वुड बिकम -2, 5 का बन जाएगा -5, 1 विल बिकम -1, -5 will become +5, 4 will become -4, 6 become -6, -1 will become +1, -6 becomes 6, 3 will become -3. Now we'll check for -A transpose, -2, यहाँ पे +2 है, -5 plus -5 -1 -1 +5 +5 -4 +4. दैट मीन्स कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इसमें भी सेम नहीं है, मतलब ये एग्जैक्टली सेम है क्या, नहीं, मतलब नाइदर A इज इक्वल टू AT, A और AT सेम नहीं, मतलब वो सिमेट्रिक भी नहीं है, एंड A निगेशन ऑफ A ट्रांसपोज को भी सेम नहीं, मतलब वो स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है। तो मैंने यहीं पे लिख दिया, फ्रॉम अबव A इज नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज एंड A इज नॉट इक्वल टू निगेशन ऑफ A ट्रांसपोज। दोनों कंडीशन फॉलो कर नहीं रहा है, मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है। दैट्स वाई मैट्रिक्स A इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। समझ में आ गया हाउ टू टेक द निगेशन ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कैसे फाइंड करना है, बिकॉज दीज आर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और एग्जाम में जो लोअर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं, जो 1, 2 या मैक्स 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, these are from these particular topics, ये बेसिक टॉपिक्स से पूछे जाते हैं, बिकॉज दे वांट टू चेक वेदर यू आर गुड और क्लियर विद द बेसिक कंसेप्ट। तो इसके लिए बेसिक कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस पे पहले फोकस किया करो। दैट मीन्स आपके जो लोअर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस है वो पहले खत्म हो जाएंगे। एनी प्रॉब्लम, देख लो एक बार क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 इन विच दे हैव गिवन, नाउ हियर टर्मिनोलॉजी यूज्ड इज क्वाइट हेवी। टर्म्स जिस वे में प्रेजेंट किया गया क्वेश्चन वो समझने में डिफिकल्ट जाता है, इसके लिए प्लीज पे अटेंशन। इन द क्वेश्चन दे हैव सेड मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij 3/3। Aij का मतलब क्या, एलिमेंट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और ये ऑर्डर 3/3, मतलब आपका मैट्रिक्स कौन सा है, 3/3 का है, मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। और आपको Aij का रिलेशन बताया गया है I-J। ये वाला क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 2.1 में सॉल्व किया, इससे एडवांस वाले सॉल्व किया, मतलब ये रिलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड था, वैसे वाले सॉल्व किए। तो पहले मैं आपको जनरल फॉर्मेट लिख के बताता हूँ। ये हमने प्रीवियसली देखा है, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। दिस इज A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। हियर A21 2 का मतलब सेकंड रो, 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम। सेम A22 2 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। A23 इस 2 का मतलब क्या है, सेकंड रो, एंड 3 का मतलब क्या है, थर्ड कॉलम। सिमिलरली आई हैव रिटन, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, बाद में कंफ्यूजन हो सकता है, A12 फाइंड करना है, A23 फाइंड करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट ओवर हियर। मतलब अभी क्लियर है आपको दैट यू आर सपोज्ड टू फाइंड A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ठीक है, सो द रिलेशन विच इज गिवन टू यू, दे हैव आस्क्ड यू टू फॉर्म और कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स। टू कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स वी आर हैविंग द रिलेशन Aij इज इक्वल टू I-J, मतलब ये जो नंबर होगा उसमें से सेकंड वाला नंबर माइनस करना, इतना लॉजिक याद रखो। ये में से I में से J माइनस करना, तो आपको एलिमेंट मिल जाएगा। फर्स्ट क्या है आपके पास A11, तो 1 में से 1 माइनस करोगे, 1 - 1 0, काफी सेम में सिंपल है। A12 1 में से 2 माइनस करोगे, क्योंकि I में से J माइनस करना है, 1 - 2 -1। सेम A13 13 मतलब 1 - 3, तो 1 माइनस से कितना बन जाएगा, -2। A21 21 मतलब 2 - 1 कितना बन जाएगा, 1। A22 22 का मतलब क्या है, 2 - 1, बिकॉज I-J बोला गया आपको, तो 2 - 2 A21 का एक्सप्लेन करता है। A21 का मतलब क्या है, 2 - 1 मतलब 1। A22 का मतलब क्या है, 2 - 2 मतलब 0। 23 का मतलब क्या आएगा, 2 - 3 -1। 31 का मतलब 3 - 1 दैट इज 2। 32 A32 का मतलब क्या, 3 - 2 दैट इज 1। A33 का मतलब क्या, 3 - 3 दैट इज 0। वी हैव गॉट ऑल द 9 वैल्यूज, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑल द 9 वैल्यूज वी हैव गॉट। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मेट। ये A11 A12 उनकी वैल्यूज पुट करोगे जो आपको मिला है, कौन सी वैल्यू, 0 -1 -2 1 0 -1 2 1 and 0. These values we are going to put in the matrix form, and we are going to write or construct the matrix A as 0 1 2 0 -1 -2 1 0 -1 2 1 0. This is the matrix which was asked to be constructed. Now they have said that by finding the transpose
फाइंड वेदर द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक. स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक फाइंड करना तो उसके लिए ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा. सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट ए ट्रांसपोज. ए ट्रांसपोज मतलब क्या है, जो यहाँ पे रोज दिख रहे हैं ना उनको यहाँ पे कॉलम लिख लो. रोज क्या है 0 -1 -2. It will become first column 0 -1 -2. Second row over here is 1 0 -1. It will become second column which is 1 0 -1. Third row is 2 1 0. It will become 2 1 0. That is third column over here. This is nothing but the A transpose. Any problem? Now I will check for the symmetric whether it is symmetric or not. I will check these two A and A transpose whether they are same or not. If you observe this properly 1 और -1 सेम नहीं है. एक भी एलिमेंट सेम नहीं, बाकी का चेक ही मत करो. अगर एक भी एलिमेंट सेम नहीं है ना तो छोड़ दो यहीं पे. नहीं तो फिर इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद इट देन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 का +2 है, 1 -1 का +1 है. यू कैन गो फॉर द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स. बट अगर यहाँ पे ही मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे -1 यहाँ पे +1 है, मैं यहीं पे रुक जाऊंगा. आई वोंट चेक फॉर द अदर रिमेनिंग एलिमेंट्स बिकॉज अगर एक एलिमेंट भी सेम नहीं होगा तो भी ये दोनों इक्वल नहीं होने वाले. तो आई डोंट नीड टू चेक द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स. नाउ आई विल गो फॉर द निगेशन बिकॉज आई हैव टू चेक फॉर स्क्यू सिमेट्रिक. मुझे ये समझ में आ गया कि सिमेट्रिक नहीं है बिकॉज ए और ए ट्रांसपोज सेम नहीं, बट आई नीड टू चेक फॉर द स्क्यू सिमेट्रिक विच इज नेगेटिव. तो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम बाय नेगेटिव. सो 80 का क्या बन जाएगा -A ट्रांसपोज और इसका माइनस मतलब सारे के सारे साइन चेंज हो गए. 0 का 0 रहेगा, -1 विल बिकम +1, -2 will become +1, +1 will become -1, 0 as it is, -1 will become 1, 2 is going to be -2, 1 would be -1, 0 as it is. Now if I observe properly these two matrices 0 0 +1 +1 2 2 -1 -1 0 0 1 1 -2 -2 -1 -1 0 0. Each and every element of A and negation of A transpose is same. That's why I am writing over here A is equal to negation of A transpose. What does that mean? That the matrix A is skew symmetric matrix. Any problem? ये pattern ही याद रखो. When they have asked you about symmetric or skew symmetric, what do you have to do? First you have to write the given matrix, then find the transpose of it, then cross check whether the original matrix and the transpose of the matrix is same or not. If it is same, stop over there only and write down that given matrix is symmetric. But if it is not same, then you have to go for the negation of the transpose of the matrix. Then find out the negation of transpose matrix as we have found out over here and check whether negation of transpose is equal to original matrix. If it is same, then it is skew symmetric. And if it is not same, मतलब A transpose भी same नहीं, negation भी same नहीं, तो ये neither symmetric nor skew symmetric. जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें आया था उस हिसाब से. Any problem? Please see it once. If you are having any doubt, please ask me. The next question is question number 11 which we are going to solve. In this question they have given you two relations. One is 3x minus y is one matrix which is 1 -1 -1 1, and the second equation is x minus 3y is equal to 0 -1 0 -1. ठीक है. When you are solving this, either you can take this matrix as it is when you are solving these equations. अगर ये मैट्रिक्स का पार्ट साइड में रख दोगे तो ये वाले इक्वेशन आपने अब तक सॉल्व किए. फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला यहाँ पे 3x माइनस वाई ना, तो आई एम राइटिंग इट ओवर हियर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 नंबर लिख रहा हूं मैं, एंड हियर इट इज x माइनस 3y, x माइनस 3y इज इक्वल टू 5. समझ लो ऐसे. ठीक है, ऐसे इक्वेशन आपने सॉल्व किया. दिस इज नथिंग बट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट. व्हाट डू? वी ट्राई टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x एज अ सेम और y एज अ सेम. यहाँ पे x को सेम बनाएंगे. तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये मैट्रिक्स वाला, अभी के लिए मुझे उसकी जरूरत नहीं कैलकुलेशन की, राइट. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, I haven't mentioned it over here, but I will consider this matrix as A. कौन से मैट्रिक्स को? 1 -1 -1 1 को मैं A कंसिडर कर लूंगा, एंड सेकंड मैट्रिक्स 0 0 -1 -1 उसको मैं क्या करने वाला हूं? B. तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू A. तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू A, विच इज फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड क्या हो जाएगा? x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स क्या लिखने वाला B, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू B. दिस टू इक्वेशंस आर देयर. अब ये A और B का छोड़ ही दो, डू नॉट इवन थिंक अबाउट इट व्हाट मैट्रिक्स इज इट, जस्ट कंसीडर इट एज A and B, दैट्स इट. नाउ वी वांट टू मेक दिस x as a same. What is the coefficient of x over here? It is 3. What is the coefficient of x over here? It is 1. If I want to make these two coefficients same, 1 को 3 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से. That's what I am writing over here. Multiplying equation 2, ये वाला इक्वेशन
बाय 3। जब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म बाय 3। तो 3 इंटू एक्स इज 3x, 3 इंटू 3y इज 9y एंड 3 इंटू बी इज 3 टाइम्स ऑफ b। तो हमारा अगला इक्वेशन क्या आ जाएगा, 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 3b, दैट इज थर्ड इक्वेशन। नाउ वी वांट, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया, इन 10th यू वर हैविंग दिस टॉपिक, यहाँ पे भी 3x आ गया, यहाँ पे भी 3x। तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट दिस इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 1, इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे लिखोगे, 1 माइनस 3। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट द फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो 3x माइनस y इज इक्वल टू a, ये लिख लिया। एंड सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, इफ यू वांट आई एम सॉल्विंग दिस ओवर हियर सेपरेटली। यहाँ पे मेरे पास है 3x माइनस y इज इक्वल टू a माइनस, सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, थर्ड इक्वेशन 3x कैपिटल में है माइनस 9y इज इक्वल्स टू 3b, राइट। आई वांट टू डू द सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन लिखा है, इसकी साइन अभी क्या है, प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन दिस साइंस आर गोइंग टू गेट चेंज, माइनस प्लस माइनस, दैट मीन्स x में क्या होगा, निगेशन, माइनस माइनस प्लस, y का क्या करना पड़ेगा, एडिशन, एंड माइनस प्लस माइनस, इनमें क्या होगा, सब्सट्रैक्शन। तो 3x माइनस 3x गेटिंग कैंसल, माइनस y, इट इज माइनस y प्लस, क्योंकि साइन चेंज हुआ है, माइनस y प्लस 9y, ये माइनस नहीं रहेगा, प्लस हो जाएगा, माइनस y प्लस 9y कितना बन जाएगा, 8y इज इक्वल टू, RHS में क्या आएगा, ये a एज इट इज, और ये माइनस साइन आने वाला है माइनस, और ये 3b भी एज इट इज, वही आंसर यहाँ पे है, देखो 8y इज इक्वल टू a माइनस 3b। अब क्या करने वाले हम, इसके बाद वी कैन नॉट सॉल्व इट फर्दर, कुछ और सॉल्व नहीं कर सकते y वगैरह के लिए, तो हम क्या करेंगे, द वैल्यूज विच वी हैव एज्यूम्ड, a और b मैट्रिक्स हमने एज्यूम किया था, उनकी वैल्यूज पुट कर देते। a क्या था हमारे पास, 1 माइनस 1 माइनस 1 1, एंड b क्या था, 0 0 माइनस 1 माइनस 1। तो जहां जहां पे a दिख रहा है, देखो 8y, तो मैंने यहाँ पे 8y लिख लिया, दिख रहा है अभी, नाउ आई एम शोइंग यू, हाँ यहाँ पे ध्यान दो, अभी ये 8y था, यहाँ पे 8y, तो मैंने इस साइड में भी क्या लिख लिया, 8y। नेक्स्ट क्या है वहाँ पे a, तो आई हैव रिटन द वैल्यू ऑफ a एज 1 माइनस 1 माइनस 1 1। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, माइनस 3 टाइम्स ऑफ b, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया माइनस 3 टाइम्स ऑफ b की वैल्यू क्या हमारे पास, 0 0 माइनस 1 माइनस 1। तो फर्स्ट आई विल डू द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये 8y एज इट इज, ये भी एज इट इज, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 3 इंटू 0 इज 0, एंड 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3। ना आई डू द एडिशन फॉर दिस, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, दोनों के ऑर्डर सेम है, तो सब्सट्रैक्शन हो सकती है। तो 8y एज इट इज, 1 माइनस 0 1, माइनस 1 माइनस माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 1 प्लस 3 कितना बन जाएगा, प्लस 2। देन माइनस 1 माइनस 0 कितना बन जाएगा, माइनस 1, एंड 1 माइनस माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 3 कितना बन जाएगा, 4। मतलब 8 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 4। बट आई वॉन्ट द वैल्यू फॉर y, तो ये 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। अब डिवाइड मतलब यहाँ पे 8 अपॉन 1 है, तो वहां पे जाके क्या होगा, 1 अपॉन 8, ये हमने प्रीवियसली देखा था। तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 टाइम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को 1 बाय 8 से मल्टीप्लाई करना है। अब 1 बाय 8 ईच एंड एवरी टर्म को मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 बाय 8 इसको भी मल्टीप्लाई, 1 बाय 8 इसको भी, 1 बाय 8 इसको भी मल्टीप्लाई, एंड 1 बाय 8 4 को भी मल्टीप्लाई। 1 बाय 8 इंटू 1 इज 1 बाय 8। नाउ 1 बाय 2 इंटू 2, ये 2 और ये 8 कट हो जाएगा, 2 1 जा एंड 2 4 जा, तो बचा क्या, 1 अपॉन 4। देखो यहाँ पे 1 अपॉन 4 आ गया, क्योंकि ये 2 यहाँ पे दिख रहा है, ये 2 और इसका मल्टीप्लिकेशन, 2 और 8 कट होंगे, 2 1 जा 2 4 जा 8, तो 1 अपॉन 4 मैंने यहाँ पे लिख लिया। नाउ दिस इज माइनस 1, 1 बाय 8 इंटू माइनस 1, माइनस 1 बाय 8, एंड ये 4 इंटू दिस, 4 1 जा 4 2 जा, तो बचा क्या, 1 अपॉन 2, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, 1 अपॉन 2। कैलकुलेशन पार्ट है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है फ्रैक्शन से, विच कैन बी डन बाय योर सेट। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, ये देखो ये वाली, 1 अपॉन 8, 1 अपॉन 4, minus 1 upon 8 and 1 by 2, which is okay, fraction is okay for us, not an issue. Now जब हमें लीनियर इक्वेशंस में y की वैल्यू मिल जाती है, हम क्या करते थे, उस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करने की कोशिश करते थे। सिमिलरली ये y की जो वैल्यू मिली है, हम प्रीवियस इक्वेशन जो हमारे पास थे उनमें पुट करने की कोशिश करते हैं। दिस इक्वेशन इज बेटर टू सॉल्व, इजियर टू सॉल्व, जिसमें डायरेक्ट y की वैल्यू पुट करनी है। तो आई कंसिडर दिस इक्वेशन, तो यहाँ पे मैं लिखा था पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, मतलब ये 1 इक्वेशन है, ये वही वाला। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस, इट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन ओनली। तो 3 इंटू एक्स माइनस वाई की जगह पे जो वैल्यू हमें मिली थी
वो मैंने पुट कर दी. लेट मी सी, यहाँ पे देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस इज माइनस वाई, वी विल शिफ्ट इट ओवर देयर. माइनस वाई वहां पे जाने के बाद क्या बन जाएगा प्लस वाई. तो 3x इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एज इट इज, और ये माइनस वाई वहां पे जाएगा प्लस वाई. नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इट. तो 3x इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एज इट इज, वी हैव रिटन प्लस y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 1/8 माइनस 1/8 1/4 1/2, वो लिख ली मैंने. नाउ सिमिलर एडिशन का जो हमने प्रॉपर्टी देखा था, जैसे हम एडिशन करते हैं दैट सिमिलर लॉजिक वी आर सपोज टू ऐड 1 + 1/8. आई हैव रिटन ओवर हियर 1 + 1/8 माइनस 1 + 1/4, ये इसके साथ एडिशन होगा. -1 + 1/4, देन दिस -1 - 1/8 -1 - 1/8 यहाँ पे लिख लिया मैंने, दिख रहा है. हाँ, एंड देन दिस 1 + 1/2 आई हैव रिटन इट ओवर हियर. वी वांट टू डू कैलकुलेशंस नाउ. 1 + 1/8 अगर कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 9/8. -1 + 1/4 कैलकुलेट करोगे तो इट वुड बी -3/4. -1 - 1/8 वुड बी -9/8, एंड 1 + 1/2 जो यहाँ पे देखो 1 + 1/2 इट इज गोइंग टू बी 3/2. मतलब 3x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 9/8 -9/4 -9/8 एंड 3/2. बट वी डोंट वांट द वैल्यू फॉर 3x, वी वांट द वैल्यू फॉर x. तो ये 3 दिख रहा है यहाँ पे, 3 का मतलब क्या 3/1. तो वहां पे शिफ्ट करोगे तो क्या बन जाएगा 1/3. तो आई हैव शिफ्टेड दिस 3 ओवर हियर, तो 1/3 बन गया. अब ये 1/3 जो है वो ईच एंड एवरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है हमें. तो आई हैव इंक्रीज्ड 1 स्टेप, आई हैव एडेड 1 मोर स्टेप ओवर हियर. ये 1/3 हर किसी को मल्टीप्लाई करके दिया. तो पहले 1/3 किसको मल्टीप्लाई होगा 9/8 को. तो यहाँ पे देखो लिख दिया 1/3 इंटू 9/8. नाउ दिस 1/3 वुड बी मल्टीप्लाई सेकंड टर्म विच इज -3/4. तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय -3/4. नाउ दिस 1/3 वुड बी मल्टीप्लाई टू -9/8. 1/3 इंटू -9/8 एंड देन 1/3 multiply by 3/2. 1/3 multiply by 3/2. If you observe properly over here, 3 1s are 3 3s are. What is remaining? 3/8. I have written 3/8. Similar, if I observe over here, 3 1s are 3 1s are cut. इतना माइनस यहाँ पे -1 बच जाएगा. So what is remaining over here? -1/4. So I'm right. I have written -1/4. This 3 1s are and 3 -3s are, क्योंकि -9 था. तो क्या बचा -3/8. तो I have written -3/8 over here. And this 3 and 3 is going to get cancelled. What is remaining? 1 and 2. So 1/2. So this is the value for x. Got the answer? x and y की वैल्यूज मिल गए. होपफुली आप लोगों को ये पार्ट समझ में आया होगा. There was 2 logics or the concept which are to be used. One is from the 10th, which is a linear pair of linear equations in 2 variables. That logic we have to apply. And second is the matrix, which we have seen, algebra of the matrix. Any problem till now? Okay, thank you so much. Now we are going to see the hint to question number 15. Question number 15 word problem है. उसमें जो conditions दिए गए उन्होंने बोला है for the month of July and August. For July and August they have given the sale of some particular textbooks by सुरेश एंड गणेश. मतलब 2 अलग अलग लोग हैं, सुरेश एंड गणेश, एंड वो अपनी अपनी शॉप्स में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स की टेक्स्ट बुक का सेल करते हैं. तो उन्होंने जो मैट्रिक्स फॉर्म में दिया है वो हम देख लेते हैं. मैट्रिक्स में आपको ये सब एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू द क्वेश्चन, फिर आपको बताऊंगा आंसर कैसे निकालना है. बट यू पीपल हैव टू सॉल्व इट एज अ होमवर्क. नाउ इन द फर्स्ट ए मतलब जुलाई में फर्स्ट रो रिप्रेजेंट सुरेश. सुरेश ने किया हुआ सेल दिखा रहा है. सेकंड रो क्या दिखा रहा है? गणेश ने किया हुआ सेल. ये क्वेश्चन में क्लियरली बताया गया, फर्स्ट रो इक्वल्स टू सुरेश एंड सेकंड रो इज गणेश. सो सुरेश ने 1 2 3 मतलब 5600 6715 एंड 8500 सेल किया. अब इसमें से कौन सी बुक है वो भी क्वेश्चन में बताया गया है. फिजिक्स का सेल कितना है, ये फिजिक्स का बताया हुआ टेक्स्ट बुक में दिया है. फिजिक्स का सेल कितना है 5600. केमिस्ट्री का सेल कितना है 6750 एंड मैथ्स का सेल कितना है 8500. फॉर वोम सुरेश. गणेश के लिए जुलाई में फिजिक्स का सेल कितना है 6650. गणेश के लिए जुलाई में केमिस्ट्री का सेल कितना है 7055 एंड गणेश के लिए जुलाई में मैथ्स का सेल कितना है 8905. नाउ अगस्त में उनका सेल इंक्रीज हुआ है. इट इज गिवन इन द एग्जाम्पल में बोला है कि अगस्त में सेल इंक्रीज हुआ है. अब उनका सेल इंक्रीज होकर नहीं वैल्यू देखो. पहले सुरेश फिजिक्स की कितने बुक्स बेच के कितने पैसे कमा रहा था, इट वॉज 5600. नाउ ही इज सेलिंग द बुक्स वर्थ 6650, इंक्रीज हो गया. प्रीवियसली केमिस्ट्री बुक्स सोल्ड बाय सुरेश वर costing 6750.
Now it is 7,055. Previously, maths textbook sold by Suresh were costing 8,500. Now it is costing 8,905. Similarly for the Ganesh, you can see the values are increasing in the August. समझ में आ गया? Now the first question is increase in the sale in rupees from July to August. जुलाई टू अगस्त में कितना इंक्रीज हुआ? फॉर ईच टेक्स्ट बुक यू हैव टू फाइंड सेपरेटली. तो आप करोगे क्या? पहले लिखोगे फॉर सुरेश. ओके, फॉर सुरेश हमें इंक्रीज फाइंड करना है. तो इंक्रीज अब आपको टेक्स्ट बुक वाइज करना पड़ेगा. इंक्रीज इन किसका फाइंड करोगे? पहले इंक्रीज इन फर्स्ट में फाइंड करता हूं फिजिक्स का. ये मैं शॉर्टकट में हिंट्स लिख के दे रहा हूं. फिजिक्स का आपको फाइंड करना है. देखो सुरेश के लिए फिजिक्स, सुरेश की फिजिक्स का पहला सोल्ड कितना करा था? 5,600. अभी कितना करा है? 6,650. तो इंक्रीज कैसे फाइंड करोगे? जो अभी का है विच इज 6,650 माइनस प्रीवियस सेल वॉज ऑफ 5,600. जो कुछ भी कैलकुलेशन करके आंसर मिलेगा दैट वुड बी द इंक्रीज इन द सेल ऑफ फिजिक्स बाय सुरेश. सेम सुरेश के लिए सेकंड कौन होगा? केमिस्ट्री, वो फाइंड करना है. सेम उसके बाद मैथ्स के लिए फाइंड करना है. ये किसके लिए होगा? सुरेश के लिए. उसके बाद क्या करोगे? फॉर क्या नाम है उसका? गणेश. फॉर गणेश अगेन यू विल फाइंड फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स. एनी प्रॉब्लम? 6 अलग अलग आंसर्स मिलेंगे 6 स्टेप्स में. फॉर फर्स्ट क्वेश्चन इंक्रीज इन द सेल्स इन रुपीज फ्रॉम जुलाई टू अगस्त. एनी प्रॉब्लम? सेकंड क्वेश्चन दे हैव सेड 10% प्रॉफिट ऑन द अगस्त. वो जो सेल कर रहे हैं ये सारा सेल है उनका. ये सेल पर उनको 10% प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? यहां पे ध्यान दो. अभी ये कंसेप्ट समझ लो. सुरेश का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स टोटल सेल जो था वो कितना था? लेट मी सी.